Yes, children, good morning. Dear children, today once again I am on the YouTube due to some urgent work in the Vidyalaya. Tomorrow I have some assignment with regional office. So today I am preparing this video. In this class I am asking for doubts. Rupesh and Yash Srivastava have posted some doubts. Still, miscellaneous exercise I discussed with you. Miscellaneous exercise of chapter 5. My dear children, Rayleigh's theorem and mean value theorem delete हो गए इस सेशन के लिए. Still, we will discuss. उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. What today I want to discuss the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise of chapter 5. This is the very important exercise. My dear children, क्लास 12th एग्जामिनेशन में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एंड उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करना है. वंस अगेन आई वांट टू रिपीट यू, प्लीज सॉल्व द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज of whole syllabus, then you will get more than 90% of the marks. Mostly questions they will ask from the miscellaneous exercise only. So today we discuss the miscellaneous exercise of chapter 5. You see the question number first, it is the question of chain rule. Question number second, once again chain rule. Question number third, I want to discuss first question number third. See the question number third. Please read it, Aditi. Y equal to 5x to the power 3 cos 2x. This is the question of function to the power function. So you remember it is the logarithmic differentiation. ये logarithmic differentiation है. इसका log लेना होगा आपको दोनों साइड का. log y कोई बेस आप नहीं लिखते हैं, इसका मतलब है आपने e बेस ले रखा है, natural log. Then you remember it is log m to the power n. It is nothing, it is n log m. Use this property, then what happened? Log y is 3 cos 2x into log 5x. This is the way. Since this function having function to the power function, that's why you have taken log of both sides. Now you differentiate both sides with respect to x. इसको with respect to x differentiate कर दें. Product rule लगेगा. This is first, log 5x second, 3 is constant, इसको बाहर लिख दें. log y का differentiation 1 upon y chain rule, it is dy by dx. Using product rule 3 common, cos 2x into differentiation of log 5x first function into differentiation of second function plus log 5x into differentiation of cos 2x. Using cross product, dy by dx equal to 3 by cos 2x. log 5x का डिफरेंशिएशन 1 upon 5x into 5 plus log 5x cos 2x का डिफरेंशिएशन minus 2 sin 2x. What is y? y is 3 5x to the power 3 cos 2x. 5 cancel, then it is cos 2x upon x minus 2 sin 2x into log 5x. This is the way by which you differentiate the function which having function to the power function. Do it. इसको करें. Function to the power function. You do not ask this question, but still I am solving this problem since I know there are some new children, they have just passed in compartment examination. So they will solve the such type of question. As you know, function to the power function is very important.
question may be asked in examination, they will in the form of function to the power function. So you remember, whenever fx to the power gx, you have to solve such type of problem with the help of logarithmic differentiation only. Please do it. इसको करें. क्वेश्चन नंबर 4th डायरेक्ट चेन रूल, 5th कोसेंट रूल हो जाएगा. 6th किसी ने पूछा भी है. आई थिंक यश श्रीवास्तव हैज आस्क्ड. मैंने भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया था. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6th. अदिति रीड करो. y equal to cot inverse under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x whole कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x whole upon under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. where 0 is greater than x is greater than pi by 2. इसको लेस देन पढ़ते हैं अदिति तिवारी. 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2. ग्रेटर में राइट साइड एरो होता है. इट इज गिवन दैट x lies between 0 to pi by 2, that is in first quadrant. My dear children, यदि x 0 to pi by 2 है तो x by 2 lies between 0 to pi by 4. और मेरे बच्चों 0 से pi by 4 में 0 से pi by 4 के बीच cos बड़ा होता है. cos x by 2 is greater than sin x by 2. You remember, इस इंटरवल में cos x by 2 ग्रेटर होता है. cos 0 1, sin 0 0, फिर cos 30 रूट 3 बाई 2, साइन 30 1 बाई 2, फिर साइन 45 पर दोनों इक्वल हो जाते हैं. मीन्स मेरा कहना यह है कि इस इंटरवल में कॉस ग्रेटर होगा. बहुत छोटी सी एक आइडेंटिटी है क्लास 11th की, आप रिकॉल करें. 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. साइन एक्स में बी रिटन एज 2 cos x by 2 into sin x by 2. Actually 2 sin x by 2 into cos x by 2 होता है. Due to some reason I have written in this form. So a square plus b square plus 2ab, that is, it is nothing, it is cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. Clear? And 1 minus sin x, 1 minus sin x is same way you have to write cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. Is it? यहां केवल माइनस आ जाएगा. नाउ प्रॉब्लम इज दिस, सर आप इसको sin x by 2 माइनस cos x by 2 होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हैं? आपने cos को पहले क्यों लिखा? Since the x by 2 lies between 0 to pi by 4, which one is greater? Cos x by 2 is greater. If you have the value here, if x by 2 lies between pi by 4 to pi by 2, remember, listen me. If x by 2 lies between pi by 4 to pi by 2, then sin x by 2 is greater. In such type of case, you have to write sin x by 2 minus cos x by 2 whole square. These are the two steps. Please write down these two steps in your notebook. Then your question is very easy. No problem at all. सबसे main step जो थे वो यही थे. ये आपको समझ आने चाहिए.
then y equal to cot inverse 1 plus sin x, that is cos x by 2 plus sin x by 2 होल स्क्वायर। रूट के अंदर में ये आएगा, रूट जब आएगा इस पर तो ऐसे आएगा जी, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विच हैविंग स्क्वायर, जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4, वैसे ही इसका स्क्वायर रूट क्या बचेगा जी, डायरेक्ट स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब रूट से बाहर आने पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। वैसे ही न्यूमरेटर में सेकेंड टर्म cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल अपॉन हियर cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस, ब्रैकेट में माइनस आएगा, ये वाली क्वांटिटी ब्रैकेट ब्रेक किया, माइनस cos x by 2 माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस sin x by 2 कैंसिल, cos x by 2 कैंसिल। देन व्हाट हैपन, y इक्वल टू cot इनवर्स 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin x by 2, 2 cancel, then it is cot inverse cos x by 2 upon sin x by 2, that is cot x by 2. You remember the property cot inverse of cot x, that is x, that is cot inverse of cot x by 2, that is x by 2. So y is x by 2. This is the simplification of inverse trigonometric function. My dear children, same question is in inverse trigonometry function also. Remember, this is the problem of simplify or find the lowest term of the inverse trigonometric function. उसी का क्वेश्चन है ये, do it, इतना करें। अब केवल डिफरेंशिएशन का एक स्टेप रह गया। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू गेट y इक्वल टू x by 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। वन by 2 is common, derivative of x is 1. So the answer is 1 by 2. Understand? This is the problem. This is the most important question, children. They generally ask this question in examination. So you remember, this is the problem which may asked in 2021 CBSE examination. आई थिंक ये ओवर हो गया। यस श्रीवास्तव, यू गॉट इट द सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं लिखना चाहूंगा, ये असाइनमेंट है आपके लिए। इफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या था दीदी, √1 प्लस साइन एक्स प्लस था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस ना, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। सेम प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है। इसका सॉल्यूशन करके क्लास के बाद आपको फोटो खींच के अपलोड करना है अपने ग्रुप पर। इसकी फोटो कर मार्किंग करूंगा मैं, तो मुझे समझ आएगा आपको समझ आए कि नहीं। सब बच्चे इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। वेयर यहां मैंने चेंज किया,
pi by 2 is less than x is less than pi, means x lies in second quadrant. इन प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका बुक में था उसमें जो प्रॉब्लम था x lies between 0 to pi by 2, that is in first quadrant. What here I am given x lies in pi by 2 to 5, that is it is second quadrant. Please write down this question and you solve this question. After the today's class you solve this problem whenever you have the time and take its photo and upload to me on the maths group, so I will check whether you got it or not. Then you have the question number 7th. My dear friend, this is the question of logarithmic differentiation. जैसे मैंने आपको थर्ड करके दिखाया वैसे ही 7th होगा. 7th ओके है, वो हो जाएगा. 8 इज ओके, 9th इज ओके, बट 10th किसी ने नहीं पूछा. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, यदि क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में नहीं आया तो 10th आएगा. 10th को तो आना ही है, 10th क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही. ये रब कर दूं. क्वेश्चन नंबर 10th, रीड इट. x to the power x plus x to the power a plus a to the power x plus a to the power a for some fixed a is greater than 0 and x is greater than 0. A is a constant, x is variable but having value positive, that is more than 0. My dear children, I am generally ask the children, please do this question, and you have solved so many times. I am asking in so many examination, monthly test, in pre-boards, quarterly, that is half yearly test. Still mostly children commit the mistake in such type of question. My dear friend, this is the question, it is not differentiable directly. इसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन का स्टेप भी है. सो you suppose the first quantity is u, second v, next w, next t. Let u equal to x to the power x, v equal to x to the power a, and w equal to e to the power x and t equal to e to the power a. Then what happened? Y equal to u plus v plus w plus t. What is the value of dy by dx? dy by dx equal to du by dx plus dv by dx plus dw by dx plus dt by dx. This is the first step. This is the first equation. U equal to x to the power x. We want to find du by dx. Whether you are able, Subrto Vishwas have written it is x into x to the power x minus 1. It is not possible, dear children. Differentiation of x to the power n is there. n constant होता है. यहाँ तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मीन्स क्या करना पड़ेगा? log लेना होगा. Taking log of both side. Log u equal to log x to the power x.
log u log m to the power n, that is n log m means x log x. इसमें log क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा क्योंकि x के ऊपर x का पावर है. हम इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ये अप्लाई होती है कांस्टेंट के लिए. x इंटू एक्स टू दी पावर x माइनस 1 लिख दीजिएगा तो वो आपका अपना रूल हो जाएगा, वो मत कर दीजिएगा. इसमें log ही लेना पड़ेगा. अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो. विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके x को फर्स्ट log x को सेकेंड लो. ट्राई करो जरा क्या आता है देखें. du बाई डी एक्स निकालिए, फिर मैं करूंगा तो चेक करना. डू इट, साथ साथ करिए, करके लिखें क्या आता है, देखें जरा क्या कर पाते हैं आप. कवर निकालना भूल गए का? ईश्वर करे ना. आई थिंक बना लिया होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ log u विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1 अपॉन u, u को t लिया, इंटू du बाई डी एक्स बाई चेन रूल. x को फर्स्ट log x को सेकेंड, x सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x, log x x का 1. इस बार थोड़ा डायरेक्ट लिखा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. देन du by dx equal to u into 1 plus log x. What is u, dear children? x to the power x. That is du by dx का वैल्यू आया x to the power x into 1 plus log x. क्लियर? अब देखें सर, v इक्वल टू क्या था? क्या इसमें log लेने की जरूरत है? नो नीड एट ऑल, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो हम v का डायरेक्ट कर सकते हैं. dv बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1. ये dv बाई डी एक्स आ गया. अब w को देखो बबलू लोग, w इक्वल टू a टू दी पावर x. आपसे हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x इंटू लॉग a. डायरेक्ट फॉर्मूला है, नो नीड टू ड्राइव इट. फिर t इक्वल टू देखिए क्या है, a टू दी पावर a है, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट का dt बाई डी एक्स करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा. चारों आ गए. du बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, dv बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, dw बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, dt बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया. ये सारे के सारे फर्स्ट में रख दीजिए और आंसर चेक करिए. ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है डियर चिल्ड्रन. फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा और 2021 में आपको करना ही है. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. dv बाई क्या आया, a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1. dw क्या आया, a टू दी पावर x लॉग a प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है.
This is the answer of question number 10th. This is the most important question, dear. Similarly, you have the question number 11th. In the question number 11th, you suppose first one is u, second one is v, then you get the result du by dx. ये भी logarithmic differentiation का है, आप try करेंगे question number 11. Question number 12, parametric functions, no problem. Question number 13, it is first you resolve it. एक्चुअली ये पाई बाई 2 है, y इक्वल टू डी बाई बाई डी एक्स 0 आएगा. एक लाइन का क्वेश्चन है, 13 1 मार्क्स में आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14th. यू डू नॉट आस्क व्हाई, आई वांट टू टेल यू वंस अगेन, आई वांट टू टेल यू. जैसे 10th इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14th भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको साफ करूं. जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आप घर में करिए, रेफरेंस बुक की हेल्प लीजिए, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उनकी हेल्प लीजिए, आपस में डिस्कस करिए. स्टिल यदि आपसे नहीं आता है देन यू पोस्ट द डाउट इन योर ग्रुप, देन आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 14th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर चिल्ड्रन. ये तो आता ही है, रीड करो बेटे. x under root 1 plus y under root 1 plus x equal to 0 for minus 1 less than x less than 1, prove that dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus x square. देखो चिल्ड्रन, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा. x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई under root 1 plus x. Shift this quantity in right hand side, squaring both side. इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए. x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, रूट खत्म हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स. ट्रांसपोजिशन करके दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिया. अभी ब्रैकेट ब्रेक करिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. शिफ्ट करिए इन लेफ्ट हैंड साइड. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. सी, जो इक्वेशन आपको दिया था उस इक्वेशन में मैंने y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया. इतना करिए, अपनी कॉपी पर इतना लिखिए. Now using factorization, x plus y into x minus y, taking xy common, x minus y equal to 0. X minus y is whole common. Then what is remaining? X plus y plus xy equal to 0. मैंने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करके x माइनस वाई होल कॉमन ले लिया, देन इट इज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. माई डियर चिल्ड्रन, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज 0, देन आइदर फर्स्ट और सेकेंड, बट x माइनस वाई इज नेवर इक्वल टू 0. क्यों? x माइनस वाई यदि 0 हो जाएगा तो x प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और वो हमें प्रूव करना नहीं. सो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द सेकेंड क्वांटिटी. x प्लस वाई प्लस एक्स वाई विल बी 0. सो
x plus taking y common 1 plus x equal to 0. X plus taking y common, then what is the value of y? See, the value of y is y into 1 plus x equal to minus x. x को शिफ्ट कर दिया, then y equal to minus x upon. So this is the way by which you solve the question number 14. First you form the value of y squaring both sides, and you make the factorization, then you get y. Now you differentiate it with respect to x. इसको with respect to x differentiate करिए. dy by dx equal to minus sign common, differentiation of x upon 1 plus x minus 1 plus x into differentiation of x minus x differentiation of 1 plus x whole upon 1 plus x whole square. कोसेंट ला, you remember? इसको सॉल्व करिए, देन यू विल गेट योर टू प्रूफ. इसको सॉल्व कर डालिए. माइनस 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स whole square. X cancel, that is minus 1 upon 1 plus x whole square. This is the question number 14th. This is the most important question, dear. You remember this question? They may ask this question in examination. सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से उसको सॉल्व करना है, एजम्पशन करके करना होता है. Question number 15th. X minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square है क्या? If it is given, actually this is a circle, you know. This is a circle, this is the equation of circle. If you think about it, this is a circle of center AB and radius C. My dear children, if you suppose let x minus a equal to c cos theta and y minus v equal to c sin theta, they are called parametric form. Direct भी कर सकते हैं, but it is the easiest way. This is the question asked in 2019 examination. 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था. सर इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा, a का 0 माइनस सी साइन थीटा, एंड इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, b का 0 c cos थीटा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा. डिवाइड करोगे तो c cos थीटा अपॉन c साइन थीटा माइनस का
C कैंसिल, दैट इज माइनस कॉट थीटा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको उसी एक्सप्रेशन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सप्रेशन देखिए, फाइंड 1 प्लस डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर, आई थिंक लिखा होगा, होल टू दी पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। सो यू वांट टू ऑप्ट डी बाई डी एक्स तो आ गया, आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना, यस श्रीवास्तव, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉट थीटा का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सो माइनस माइनस प्लस, पहले से माइनस है, इनटू डी थीटा बाई डी एक्स आएगा चेन रूल से, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। इतना लिखें, इतना लिखें अपनी कॉपी पर। अब देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप देखें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास है माइनस सी साइन थीटा है क्या, डी एक्स बाई डी थीटा माइनस सी साइन थीटा है क्या, देन डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल आएगा, मीन्स माइनस 1 अपॉन सी साइन थीटा। ये वैल्यू आप यहां रख देंगे, माइनस 1 अपॉन सी साइन थीटा। देन व्हाट हैपन, इट बिकम्स माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी, साइन थीटा ऊपर गया, माइनस कोसेक थीटा। This is the second. Now what do you want? हमको किस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी? Therefore 1 प्लस डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा, तो स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 अपॉन क्या बनेगा, माइनस कोसेक क्यू थीटा अपॉन सी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिया माइनस कॉट थीटा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रख दिया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 कोसेक क्यू थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस सी कोसेक क्यू थीटा, कोसेक क्यू थीटा कोसेक क्यू थीटा कैंसिल, माइनस सी। सो द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। व्हाट यू वांट, मतलब इसमें कहीं पर भी ए भी नहीं आ रहा है, आप यही प्रूव करना चाहते थे, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज अनदर वे। So for today's class, this is the last question. Now tomorrow class I will be take on Meet, that is Google Meet. Then we will discuss the further questions and you solve the remaining problem जो मैंने skip किए वो solve करिए, और एक question assignment वाला आपको solve करके